Hi, everybody, and a very good evening. We'll just wait for a few minutes. Good evening. Hello, everybody. Good evening once again. Thank you so much for joining in again. Good evening, Joy. Hi, Prajyot. Pratibha ji, hello. Sushant, good evening. Sachin Jaiswal, good evening. Hi, Pradeep. So we'll just wait for moments, 1 or 2 minutes, and then we'll begin. Hello, Krishna. Hello, Padmaja from Hyderabad. I hope you're well. Ramesh ji, good evening. Nice to see you. Hello, Pandurang. Sudhir ji, good evening. Yes, good evening, Ramesh ji. Wonderful. Thank you all for being here again this evening. Good evening, Srishmito. Hello, Bhaskar. Hi, Dev. How are you? Hello, Anita ji. Hemant ji, namaskaram. Wonderful. We'll just wait for a few minutes, 2 more minutes, and then we'll begin. I hope all of you are doing well. If some of you can share your experiences, how you have been feeling. Are you feeling better, feeling lighter, feeling a little more calm, positive? Any feedback will be appreciated. Shilpi is saying wonderful. I'm glad. Thank you so much, Shilpi. Awesome. Hello, Trupti. Hello, Bhaskar. Ramesh is saying doing great. Beena is also here. Oh, that is Beena. Okay. Sanjeev ji. Never been so much. Okay, I missed your very calm. Okay, very good. Joy is saying more positive. Dev is saying feeling wonderful. Deepak is saying wonderful feeling. Pranjali is saying good evening. Hi, Beena. Sanjeev is saying mental fluctuations have reduced a lot. Shilpi is saying I'm following all your teachings. Thank you, Shilpi. Thank you so much. Anita is saying feeling great. Very good. So I think we have enough people and we'll get started. So I'll just do a quick recap of what we have done so far. Abhi tak Sanjeev ji is saying super calm. Wow, very nice. We'll just do a little recap कि हमने अभी तक क्या सीखा और फिर हम कुछ नया आज और भी थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले डे 1 में हमने फॉर्मूला सीखा E + R = O. कौन बता सकता है व्हाट E + R = O? Just type in your chat box what is the meaning of E + R = O.
Okay, this is one of the most important equations that we need to always remember. इसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना है. Okay, I'm just waiting for some answers. E plus R equal to O का मीनिंग क्या है? I hope everybody is able to hear me and see me clearly. अगर आप मुझे सुन सकते हो, देख सकते हो तो प्लीज़ टाइप करिए yes. Okay, Ashwin says emotions plus response equal to outcome. No, you got it slightly wrong. Suresh Shrishi says event plus response equal to outcome. Perfect. Dev says event plus response equal to outcome. So E stands for events. Events are not in our control. हम कितना भी करें, बाहर कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा. जैसे अभी ये कोरोना का जो सिचुएशन है, इट्स अ ग्लोबल सिचुएशन, नॉट इन आवर कंट्रोल. लेकिन हम इवेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है. और जैसा हम रिस्पॉन्स करेंगे एग्जैक्टली वैसा हमें आउटकम मिलेगा. अगर हम सही रिस्पॉन्स करेंगे तो सही आउटकम मिलेगा, गलत रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा तो नेगेटिव आउटकम मिलेगा. ओके, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग वी लर्न. Second thing we learned on first day was learning how to practice gratitude. So we said that every morning we should take a gratitude book. उसमें कम से कम 7 से 10 मिनट के लिए हमें ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है, लिखना है, थैंक यू गॉड फॉर वट एवर इज़ देयर इन योर लाइफ. तो इसको हमें प्रैक्टिस करना है. थर्ड चीज़ हमने पहले दिन बताई कि स्टे अवेक फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स. बहुत ज़्यादा नेगेटिव टीवी देखना, नेगेटिव न्यूज़ को पढ़ना. एक बार आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सुबह आप ले लो, उसके बाद बार बार व्हाट्सएप को चेक करना, टीवी को चेक करना, न्यूज़ को चेक करना प्लीज़ मत करिए. कि जितना ज़्यादा हम सुनते हैं उतना ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे माइंड में घुस जाती है. तो प्लीज़ स्टे अवे टू मच फ्रॉम, जितना इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए उतना लीजिए, बाकी सारा प्लीज. ओके. चौथा चीज़ हमने फर्स्ट डे को सीखा था, वो दैट वाज प्रिवेंटिव टैपिंग. तो सुबह उठ करके आई टोल्ड यू टू टैप ऑन दीज पॉइंट्स, ईच ऑफ दीज पॉइंट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स. मन में जो भी विचार आते आने दो और टैपिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ. उससे क्या होगा कि माइंड में कोई भी नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी. इसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव टैपिंग. मतलब सुबह सुबह अगर हमने रोज़ उसको कर लिया तो वो नहाने के बराबर है. नहाने से हम अपने शरीर को ठीक रखते हैं और प्रिवेंटिव टैपिंग से हम अपने माइंड को ठीक रखते हैं. तो अगर माइंड को कंटिन्यूसली हमने ठीक रखा, दिन के समय में भी अगर कभी कोई टेंशन होता है, प्रेशर होता है, तो टैपिंग करना ज़रूरी है. तो ऑन डे 2 वी अंडरस्टूड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स को हमने और डिटेल में सीखा. हमने सीखा कि हमारे बॉडी के ऊपर 9 पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमें टैप करना है. और फिर हमने पूरा सीक्वेंस सीखा कि सबसे पहले हमें कराटे चॉप से शुरू करना है, फिर बाकी के पॉइंट्स से को टैप करना है. तो दिन के समय में कभी भी अगर आपको स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, एंग्जाइटी होती है, तो प्लीज़ यूज़ EFT. Please use tapping, because the more you use tapping, the more calm you will become, the more peaceful you will become. And धीरे धीरे हमारा ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाएगा. और जैसे ही ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाता है तो क्या होता है कि बाहर की कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी. तो people who are probably joining in today for the first time, my suggestion is please refer to all the videos of the first day 1, day 2, day 3. सारे वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सिखाया है कि टैपिंग कैसे करना है और ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, वो मैंने आपको बताया. ओके, सो डे 2 वॉज ऑल अबाउट लर्निंग हाउ टू यूज़ EFT फॉर रिमूविंग फियर, एंग्जाइटी, टेंशन, वरी. डे 3 वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द माइंड. येस्टरडे वी अंडरस्टूड द माइंड. वी अंडरस्टूड वी हैव 2 माइंड्स, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड. हमने दोनों माइंड्स के बीच में डिफरेंस को समझा. और हमने समझा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़मीन के जैसा है, ज़मीन. और ज़मीन में हम बीज बोते हैं. तो हमने बीज बोना, हमने सीखा कि कितनी तरह से बीज हम बोते हैं, in 5 ways. Can anybody tell me what are the 5 types of seeds that we put in the subconscious mind? What are the 5 types of seeds that we put in the subconscious mind? Does anybody remember? Good evening, Rajni. What are the 5 types of seeds we put in the subconscious mind?
Okay, I think there is a time lag. That is why it is taking time for people to respond. What are the 5 kinds of seeds that you put in the subconscious mind? So I'm going to repeat it for you. First is thoughts. Yes, very good. Rajni is saying thoughts, feelings, images. We're missing 2 more. Words and actions. So the 5 ways in which you put seeds in the subconscious mind is जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी माइंड में देखते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं और जो भी हम एक्शंस लेते हैं. ये 5 थे. Thank you so much, all of you giving answers. It's a little slow response from the net. That's why I'm getting answers a little slow. But yes, these are the 4 or 5 ways in which you install seeds. तो हमारे माइंड में हम जितना भी सोचते हैं, every thought is a seed. Every word that you speak is a seed. Every picture that you see in your mind is a seed. Every feeling that you hold in yourself is a seed. Okay, and every action you take is a seed. तो ये 5 चीज़ों को हमें संभालना है. इसलिए गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत महसूस करो. ये हम ऐड कर सकते हैं. बुरा मत महसूस करो और बुरा मत करो. Right? So do the right things. Use this properly and you can use your mind beautifully. तो हम थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और बातें करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड, लाइक आई सेड, इट्स लाइक अ पीस ऑफ लैंड. सबकॉन्शियस माइंड को हम एक और तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. इट इज़ लाइक द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर. तो जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उसका काम क्या होता है? सी, इन द बिगनिंग वी सेड hardware is like, the brain is like the hardware, mind is like the software. So now I am saying your subconscious mind is like the hard disk of the computer. Hard disk का काम क्या होता है? Data storage, right? तो इसमें सारा प्रोग्राम स्टोर्ड होता है, everything stored in the subconscious mind. हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में होती है उसके अंदर सारा डेटा स्टोर्ड होता है, सब कुछ स्टोर्ड होता है. इसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितना भी डेटा है, you know, everything that is there right from the time of birth, जब भी से हमारा जन्म हुआ तब से लेके आज तक जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है. ओके, एवरी सिंगल एक्सपीरियंस इज स्टोर्ड. सो लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ लिटिल बेबी दैट इज जस्ट बॉर्न. अभी अभी बच्चे का जन्म हुआ है और वो छोटा सा बेबी आपके हाथ में है. उसके अंदर भी तो सबकॉन्शियस माइंड होता है. तो आपको क्या लगता है उसके हार्ड डिस्क के अंदर कितना डेटा होगा? क्या डेटा होगा उसके अंदर? कैन समबडी गिव मी एन आंसर? कि एक छोटे से बेबी होता है, उसके अंदर भी सबकॉन्शियस माइंड होता है. तो इफ दैट सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक द हार्ड डिस्क, तो वो हार्ड डिस्क के अंदर क्या डेटा होता है? What is the data that is there in the subconscious mind of the little baby? Zero. Very good. So Rajni is saying that there is no data in the baby's mind. इसलिए एक छोटा सा बेबी कितना पावरफुल होता है आप सोचिए. बीना इज ऑल्सो सेइंग एम्प्टी, रजनी इज सेइंग नथिंग, संजीव जी इज सेइंग डज द सबकॉन्शियस माइंड नॉट कैरी डेटा ऑफ द प्रीवियस लाइव्स? यस, इट डज. बट राइट नाउ आई एम लीविंग दैट आउट द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर देर इज वन मोर माइंड विच इज कॉल्ड द अनकॉन्शियस माइंड. And that unconscious mind is the mind which has the data from our past lives. So right now, because I am limiting the scope of this discussion to this life, तो इस life के connection में there is no data in the baby, and that is why little baby is very very powerful. अब देखो, ना तो उसको किसी की शर्म होती है, ना किसी की चिंता होती है, ना कोई डर, ना कोई टेंशन, ना कोई स्ट्रेस, ना नथिंग. Babies are very very powerful. Okay? सो बेबीज हैव 100% पावर. उसको किसी का डर नहीं लगता, कोई शर्म नहीं होती, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं. आप उसको खाना खिलाओ तो उसको पसंद होगा तो खाएगा, नहीं तो थूक देगा. तो बेबीज आर वेरी क्लियर ऑफ व्हाट दे वांट. सो हैव यू सीन लिटिल बेबीज? इफ यू टेक अ लिटिल बेबी आफ्टर, आप घर पूरे दिन काम करके पूरे थक के घर पे आते हो और एक छोटा सा बेबी को आप हाथ में ले लो, तो क्या होता है? पूरा स्ट्रेस खत्म. 10 सेकेंड्स में आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, राइट? अगर आपको कोई हाथ मिले तो कितना स्ट्रेस खत्म होगा उसका?
You take a baby, the baby is able to de-stress you in 10 seconds. लेकिन अगर आपको कोई हाथ में लेगा तो उसका स्ट्रेस कितना खत्म होगा? इनफैक्ट स्ट्रेस बढ़ जाएगा. So babies are very powerful. They can de-stress you in 10 seconds. Right? The reason I'm telling you all of this is because we were all born like little babies, right? कोई भी हम डायरेक्ट ऊपर से थोड़ी टपका है. Everybody was born like a little baby, as a baby. And at that time, our hard disk was also empty. And we were also as powerful like a little baby. आप देखो एक छोटा सा बच्चा अगर रोता है तो पूरा घर भागते भागते आता है कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. सब लोग भाग के भागते आते हैं. हम लोग रोते हैं तो कौन आता है? इनफैक्ट जो लोग होते हैं वो भी चले जाते हैं. राइट? तो बेबीज आर वेरी पावरफुल. ओके, अगर एक छोटा सा बच्चा रूम में ऐसे चलते चलते जाएगा ना, छोटा सा बेबी चलते चलते जाएगा तो सबको हंसाते हंसाते जाएगा. द होल रूम इज लाइटेड अप. और हम लोग कहीं पे जाते तो कोई देखता भी है हमें. So what I want you to realize is that babies are born very powerful. It doesn't matter where the baby is born. The baby could be born on the road. The baby could be born on a palace. Everybody has been born with the same power. God doesn't differentiate between anybody. When the baby is born, every baby has 100% power. अब ये बच्चा इतना पावरफुल था, उसके अंदर इतनी शक्ति थी, ना तो उसको डर था किसी का, ना कोई टेंशन था. आप एक छोटे से बच्चे को लेके, 1 साल के बच्चे को लेकर के आप उसको हवा में फेंको तो ऊपर जाके क्या करता है? हंसता है, एंजॉय करता है. राइट? अगर हमें कोई उठा के फेंके तो ऐसे ऊपर तो क्या होगा? हम तो डर जाएंगे और ये चेक करेंगे नीचे नेट वेट रखा है कि नहीं. एंड वील गेट स्केर्ड बिकॉज वी डोंट हैव फेथ. देखो बेबीज को कितना विश्वास होता है कि आप उसको ऊपर फेंकोगे तो उसको विश्वास है कि कोई ना कोई तो मुझे पकड़ ही लेगा. राइट? सो दैट इज वाई बेबीज आर सो पावरफुल. राइट? इफ यू सी अ लिटिल 1 year old or a 1.5 year old baby who's trying to walk for the first time, पहली बार चलने की कोशिश कर रहा है, कितनी बार गिरता है वो? hundreds of times. गिरेगा वापस उठेगा, गिरेगा वापस उठेगा, गिरेगा वापस उठेगा. हैव यू एवर सीन अ बेबी गिविंग अप कि बस हो गया, अब मैं नहीं चलूंगा, बहुत फेलियर हो गए? You will see that babies never give up, and that is why they keep falling and keep getting up again, keep falling, keep getting up again. They're not worried about failures, and that is why we are all able to walk today. So all these qualities were there in us. We were completely positive. हमें किसी का डर नहीं था. Unstoppable थे. कोई भी फेलियर हमको रोक नहीं पाता था. हमको पूरा विश्वास था. कोई शर्म नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था. हम फुल एक्सप्रेसिव थे. जब रोना आता है तो इतना ज़बरदस्त रोते थे, कोई टेंशन नहीं कि बाजू वाला उठ जाएगा, ऊपर वाला उठ जाएगा. रात को 2 बजे भी रोना है तो बिंदास रोते थे. सो दिस वॉज द पावर ऑफ द बेबी. नाउ व्हाट हैपेंड टू दिस बेबी? उसका पावर कम क्यों हो गया? जितना पावर उस बेबी में था उतना पावर क्या हमारे अंदर आज है? नहीं है. इसका कारण ये है कि जब बच्चा, जैसे एक कंप्यूटर होता है फैक्ट्री में से डिलीवर होता है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कौन फिट करता है? प्रोग्रामर फिट करता है. राइट? अगर उसकी प्रोग्रामिंग में गड़बड़ है तो कंप्यूटर के रिजल्ट्स कैसे होंगे? गड़बड़ हो जाएंगे. इसी तरह बेबी जो है वो भी एक कंप्यूटर है. कंप्यूटर से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज बेबीज आर वेरी पावरफुल. अब उस बेबी को प्रोग्राम कौन करता है? कंप्यूटर को तो प्रोग्रामर प्रोग्राम करता है. बेबी को कौन प्रोग्राम करता है? कोई बता सकता है? हु प्रोग्राम्स द बेबी? Okay, I just want to confirm with all of you. Can you all see me, hear me clearly? If it is yes, please type yes. Please type yes if you can hear me clearly. Yes, Kirti Gavde says, Kirti ji says, parents, teachers, all these people program you. Okay, Ashwini says yes. Okay, Sanjeev ji says yes. Thank you so much for confirming. So all these people around you program the baby. Okay, तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसका पापा उसको बोलते हैं, बेटा तू तो मेरा राजा बेटा है, तू तो मेरी रानी बिटिया है. तो क्या बच्चा कभी उसको डाउट करता है? नहीं. पापा मम्मी तो बच्चे के लिए गॉड होते हैं. तो पापा मम्मी जो भी बच्चे को बोलते हैं उसको वो सच मान लेता है. ओके, तो अगर आप किसी छोटी बेटी आपकी बेटी को बोलो कि तू तो मेरी रानी बिटिया है, तो द चाइल्ड विल नेवर क्वेश्चन यू कि पापा मुझे प्रूव करो, मैं कहाँ रानी बिटिया हूँ.
Child is never going to ask you questions. Whatever you tell the child, it is going to believe it to be true. इसी तरह जब कोई छोटा बच्चा मम्मी डैडी के साथ में होता है तो मम्मी डैडी जो भी बोलते हैं, जो भी उसको बताते हैं, बच्चा उसको सच मान लेता है. यस, सोनिका जी सेज वेरी गुड. फैमिली, सोसाइटी, नेबरहुड, ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रोग्राम करती है. तो बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पास तो कोई कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है. कॉन्शियस माइंड नहीं होता है तो उसको जो भी चीज़ हम बताते हैं उसको वो मान लेता है. उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, उस कमांड को रोकने वाला कोई नहीं है. तो बच्चे को हम जो भी बोलते हैं वो उसके अंदर चले जाता है. इनफैक्ट बल्कि 0 to 8 years ये एक ऐसा समय है बच्चे का जब हम बच्चे को जो भी बोलते हैं उसको वो मान लेता है और उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के वो प्रोग्राम फिट हो जाता है. और वो प्रोग्राम जो सबकॉन्शियस माइंड में उस समय फिट हो गया वो ज़िंदगी भर चलते रहता है. तो आप सोचिए, अभी जैसे कि देखिए छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज़ किसी एक बच्चे को हमने ये बोल दिया कि तू तो ब्रिलियंट है, तू तो आगे जाके कुछ बड़ा होने वाला है लाइफ में. तो बच्चा मानने लगता है क्योंकि उसको अपने पापा और मम्मी पे पूरा विश्वास होता है. तो अगर पापा बोल रहे हैं कि तू तो ब्रिलियंट होने वाला है, मम्मी बोल रही है ब्रिलियंट होने वाला है, तो दैट इज़ अज्यूम्ड कि दैट इज़ ट्रू. लेकिन इसी बच्चे को अगर कोई मम्मी बोले या डैडी बोले तू तो बुद्धू है, समझता ही नहीं है, बहुत मस्ती करता है, इतना नालायक है, इतना कुछ करता ही नहीं है, तेरा बड़ा भाई देख कितना होशियार है, तू तो कुछ नहीं है, तू पता नहीं तेरे लाइफ में क्या करेगा, तुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेगा तो तेरे ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, 10th स्टैंडर्ड में फेल होगा तो तेरा आगे फ्यूचर में क्या होगा, तेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी. इस तरह के जो कमांड्स है, व्हेन अ चाइल्ड इज कंपेयर्ड विद समबडी एल्स, द कमांड्स आर वेरी दैट हर्ट्स द चाइल्ड वेरी बैडली. एंड अनफॉर्चुनेटली ये कमांड्स में अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो बच्चा ये मानने लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ. तो जो बच्चा जन्म के समय ऐसे मानता था कि आई एम अ परफेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, बिकॉज जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी तो कोई सोच ही नहीं होती, उसको तो मानना ये है कि मैं तो बस आई एम अ क्रिएशन ऑफ गॉड एंड आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट. जो बच्चा जन्म के समय इतना परफेक्ट था वो आज ऐसे क्यों मान रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ. उस मैं अच्छा नहीं हूँ वो प्रोग्राम लेकर के तो नहीं आया था. वो किसी ने उसको बताया कि तू अच्छा नहीं है, तू ऐसा नहीं है, तेरा बड़ा भाई ज़्यादा होशियार है, लुक एट योर रिलेटिव्स, दे आर सो इंटेलिजेंट, यू आर डम, यू मेक सो मेनी मिस्टेक्स. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आई हैव सीन दैट वो बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके आता है, 5 सब्जेक्ट है, उसमें से 4 में ए मिला है, एक में बेचारे को बी मिला है. तो गेस विच वन ग्रेड द पेरेंट्स फोकस ऑन? दे फोकस ऑन द बी एंड दे से यार तेरे को इतना समझाया था, तू इतना स्टूपिड मिस्टेक करके आया, इतना स्टूपिड है, डम. नाउ दिस डजंट हैपन ऑलवेज, बट आई हैव सीन दैट समटाइम्स in order for us to actually improve our child or make the child excel in his or her work, we make this comments. हमारा इंटेंशन बुरा नहीं होता है एज पेरेंट्स, लेकिन ये जो शब्द हम बोलते हैं वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है. उसके वजह से कहीं ना कहीं वो बच्चा ये बिलीव करता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, माई डैड डजन लव मी, माई मॉम डजन लव मी, वो तो मेरे बड़े भाई को प्यार करते हैं, मेरे छोटे भाई को प्यार करते हैं. ये जो सारी चीज़ें हैं, दिस इज़ वॉट प्रोग्राम्स द सबकॉन्शियस माइंड. तो हमारी सारी मान्यताएं जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो बचपन से होती है उससे बनती है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा, हमारे देखिए लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से होते हैं? हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी एंड सेल्फ. खास करके 3, हेल्थ, मनी एंड रिलेशनशिप्स. ये तीनों की प्रोग्रामिंग बचपन में हो जाती है. देखो संजीव जी क्या कहते हैं, मोस्ट पेरेंट्स पुश देयर चिल्ड्रन टू परफॉर्म बेटर, पीयर प्रेशर. येस, एब्सोल्युटली. सो आई एम नॉट सेइंग दैट द पेरेंट्स आर टू ब्लेम और द पेरेंट्स शुड ब्लेम themselves. But what parents need to understand is that are we doing good to the child or are we hurting the child? Because what we need to make sure is that we are programming the child in the correct manner. If we don't say the right words to the child starts creating wrong belief systems. I am not so good, people don't like me, I am not lovable, I am not able to achieve anything in my life. This is the root cause of all problems in life. हमारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका रूट कॉज इज समवेयर माई बिलीव्स आर रॉन्ग. ओके, तो खुद के बारे में जब खुद की मान्यताएं गलत है तो दैट इज नोन एज लो सेल्फ इमेज और इट इज ऑल्सो नोन एज लो सेल्फ एस्टीम. सो व्हेन देयर इज लो सेल्फ इमेज और लो सेल्फ एस्टीम,
it is basically results in low confidence of the person. And when the confidence is low, the results are low. So a baby who was super confident at the time of birth, what happened to this baby? It was basically wrong programming. Now I know there are lots of audio parents sitting in the listening to me today. I don't want you to feel guilty, please. Please don't get me wrong. But what I definitely want to do is to make you aware that आपके जितने भी words हैं, आप जो शब्द बोलते हैं, वो उसके subconscious mind में जा रहे हैं. Now didn't we say that हम subconscious mind में हम 5 तरीके से seeds install करते हैं? How many ways do we install the seeds in the subconscious mind? 5 ways. Thoughts, words, images, feelings, actions. Okay. I also see Mona. Hi Mona. Mona was with me in the Train the Trainer program with Jack Canfield. So thank you Mona for being here. This program is Hindi English, so I'm hoping you'll be able to understand a little bit of this. Okay. So ये जो thoughts, words, images, feelings and actions है, वो बाहर जब बच्चा छोटा होता है तो बाहर की दुनिया से इंस्टॉल हो रहा है. देखो बच्चे की जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़मीन है और उस ज़मीन में हम जो बोल रहे हैं उसमें इंस्टॉल हो रहा है. तो हम जो कुछ भी बोलते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक बीज की तरह इंस्टॉल होता है और उसके लाइफ में आगे जाके वो चीज़ उसके लिए सच बन जाता है. तो इफ़ वी आर गिविंग पॉजिटिव इंस्पायरिंग वर्ड्स, okay, when you are giving positive inspiring words to people, to the children, they will feel good about themselves. They feel good. One of the biggest things that you can do for a child is to build a strong self-esteem. Okay, besides all the knowledge, मैं तो कहता हूँ एक बार उसके marks भी कम होंगे ना, लेकिन उसका self-esteem अच्छा होगा. If the self-esteem is good, I am capable, I am a unique child of God, I am special, I can definitely achieve success in my life. I know it is possible and I am lovable and I deserve the best in my life. अगर इस तरह की belief system बच्चे में है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं आगे जीवन में जाके कितना भी बहुत ही बड़ा काम करेगा. Okay? So I am seeing a lot of comments, but unfortunately I am not able to answer all of them right now. So for now I will just continue talking and in the end I will try to take up a few questions. Okay? So somebody is asking, how do you build the self-image of the child? So I'm going to share with you a few tips before we end the session today. Today what I wanted to make you aware is that whatever is sitting in our subconscious mind is really driving our life. जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं वो उसके रिजल्ट्स को ड्राइव करता है, इसी तरह हमारे अंदर जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल हुए थे बचपन से लेके आज तक जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में हुए वो हमारे विचारों को कंट्रोल करता है और विचारों से बनते हैं हमारे एक्शंस और एक्शन से मिलते हैं हमें रिजल्ट्स. तो हमारे माइंड में जो भी पुरानी प्रोग्रामिंग है, जो भी हमारी मान्यताएं हैं, उससे मिलते हैं हमारे रिजल्ट्स. ओके, आप अपने आप को एक कंप्यूटर के साथ में कंपेयर कर लो. इट इज एग्जैक्टली लाइक अ कंप्यूटर. रॉन्ग प्रोग्रामिंग इन द कंप्यूटर, रॉन्ग रिजल्ट्स. रॉन्ग प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, wrong results in our life. Okay, so I just wanted to share a few things on how parents. I'm hoping that you've all understood that how the subconscious mind hard disk works. Okay, I'll just give you a few more examples के हमारे लाइफ की अलग अलग प्रोग्रामिंग कैसे होती है. जैसे हेल्थ का एरिया ले लो. ओके, हेल्थ के एरिया में सपोज बच्चा भागते भागते बारिश में जाता है और हम बच्चे को बोलते हैं बेटा बारिश में मत जा, जुकाम हो जाएगा, यू विल गेट अ कैच अ कोल्ड. वो जो शब्द हमने बोले वो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है. अगर मैं बारिश में जाऊंगा तो मुझे जुकाम हो जाएगा. तो उससे क्या होगा, whenever the child goes in the rain the next time, the child is definitely going to catch cold because the program is installed in the subconscious mind. Okay? इसी तरह अगर मम्मी ने उसको डांटा वाटा या डैडी ने डांटा और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डांट खाई तो बच्चे के माइंड में वो प्रोग्राम फिट हो सकता है कि माई मॉम डजंट लव मी, शी डजंट केयर फॉर मी, माई डैड डजंट केयर फॉर मी. तो इस तरह से हमारे रिलेशनशिप्स में कभी कभी तनाव आते हैं. पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, नेगेटिव प्रोग्रामिंग से नेगेटिव रिलेशनशिप्स. ओके, पैसों की प्रोग्रामिंग भी गलत हो जाती है बचपन में कभी कभी. अब पैसों के बारे में हम कितनी सारी चीज़ें सुनते हैं. कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट व्हाट डिड यू हियर अबाउट मनी व्हेन यू वर यंग? पैसों के बारे में सब लोग ने कुछ तो सुना होगा बचपन में. व्हाट डिड यू हियर अबाउट मनी व्हेन यू वर यंग?
Anybody? Just wait for a few responses. जब आप छोटे थे तो पैसों के बारे में आपने क्या सुना? Money is bad. Oh my God. Money doesn't grow on trees. The age-old classic. Yes, money doesn't grow on trees. The rich people are snobbish. पैसा पेड़ पे नहीं उगता. ओके, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. Okay, money does not grow on trees is standard. Basically, money does not grow on trees का meaning क्या था? कि it is not easy to get rich. You have to work very, very hard to earn money. Okay, पैसा ही मुसीबत की जड़ है. Money is the root cause of all evil. जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए. पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. पैसा बुरी बात होती है. पैर फैलाओ. पैसा तो हाथ का मैल है. पैसा आता है और जाता है. आप सोचिए, ऑल दिस इज सो रॉन्ग प्रोग्रामिंग. पैसा रिलेशनशिप को खराब करता है. ओ माय गॉड. सो ये सारी चीज़ें हमने सुनी है और ये सारे प्रोग्राम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है. लक्ष्मी तो चंचल होती है. वेरी नाइस. पैसा रिश्ते को खराब कर देता है. लुक एट ऑल दीज बिलीव्स. क्या ये सारी चीज़ों के बारे में हम रोज़ सोचते हैं? नहीं. लेकिन मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि पैसों के बारे में आपने क्या सुना था, तो ये सारी चीज़ पॉपकॉर्न के जैसे सबकॉन्शियस माइंड में से बाहर निकली. ये इसलिए निकली क्योंकि आपने बचपन में या कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें सुनी थी. एंड ऑल ऑफ दिस इज सिटिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड. ना पैसों के बारे में अगर गलत फहमी है या गलत बिलीव्स है, तो अनफॉर्चुनेटली योर एक्शंस कनेक्टेड विद मनी विल ऑल्सो नॉट बी राइट. एंड इफ योर एक्शंस आर नॉट राइट, मनी विल नेवर स्टिक इन योर लाइफ. ओके, सो पैसे को वो टिकने ही नहीं देगा. क्योंकि अगर पैसा टिक गया तो आप धनवान बन जाओगे और धनवान लोग बुरे होते हैं. इस तरह की प्रोग्रामिंग अगर हमारे अंदर है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें धनवान बनने ही नहीं देता है. किसी ना किसी तरह जितना भी पैसा आता है वो सारा पैसे चले जाता है. आप नोटिस करोगे, जनरली यू विल नोटिस इन योर लाइफ दैट जितनी भी आपकी इनकम बढ़ती है, एक्सपेंस ऑटोमेटिकली बढ़ते रहता है. इनकम बढ़ती है, एक्सपेंस बढ़ता है. इनकम बढ़ती है, एक्सपेंस बढ़ता है. और समहाउ ये पैसों का जो झमेला है वो ज़िंदगी भर ख़त्म ही नहीं होता है. ऐसे क्यों होता है? दिस इज हैपनिंग बेसिकली बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रोग्रामिंग ऑफ मनी. Now don't be surprised, more than 90% people on the planet have wrong programming about money. इसलिए मैक्सिमम लोग पैसों के मामले में स्ट्रगल करते हैं. ओके, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था. मेरे बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया था. मैं 20 साल पहले की बात है. वो इसलिए था क्योंकि मेरी बचपन में प्रोग्रामिंग गलत हो गई थी. कहीं ना कहीं हमारे घर में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे झगड़े होते थे पैसों के बारे में. तो मेरी मान्यता ये हो गई कि पैसा मतलब टेंशन, पैसा मतलब झगड़ा. और उसके वजह से क्या हुआ कि मैंने कभी पैसों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और इसलिए मेरे बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए और पैसा मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर. एंड दैट इज़ वाई देयर वर सो मेनी मनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रोग्रामिंग अबाउट मनी. ओके, so what I'm trying to say is all the programs which are sitting in your subconscious mind is really controlling your life. Okay, so we during the next couple techniques on how to program the mind and all of these things we'll learn. Okay, and आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो I'm also going to announce an online program where I will teach all the techniques in more details. तो अगर आपको ऑनलाइन प्रोग्राम भी ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो. Because right now so there is no way to conduct a live workshop, but I will be conducting an online program where I will teach a lot of these techniques in detail. यहाँ पे शॉर्ट में तो हम जितना हो सके हम कर रहे हैं, but let's try our best in the next 17-18 days which we are together. Okay, चलिए, तो पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स देता हूँ और आज का हम सेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. सो पेरेंट्स के लिए द बेस्ट वे टू प्रोग्राम यंग चिल्ड्रन. ओके, Hemendra ji says video is stopped. Is everybody else able to see the video and hear me clearly, please? Can somebody confirm if you are able to hear me and see me clearly? Hi everybody, please confirm if you can see me clearly. ओके, थैंक यू अश्विनी, थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सो मच. सो छोटे छोटे बच्चे अगर आपके घर में है, देखिए एक उम्र तक तो बच्चे हमारी सुनते हैं.
उसके बाद हमें एक अलग तरीके से उनके साथ में उनको अलग तरीके से उनके साथ में काम करना पड़ता है। लेकिन आपके घर में अगर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन स्पेशली 6 7 8 साल तक के बच्चे, तो आप क्या करिए, उनको बेस्ट तरीका प्रोग्राम करने का ये है कि रात को सोते समय उनको अच्छी कहानियाँ सुनाइए। पुट द चाइल्ड टू स्लीप विद ब्यूटिफुल बेड टाइम स्टोरीज। सो पंचतंत्र की स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज, जहाँ पे मॉरल्स होने चाहिए। एट द एंड ऑफ द स्टोरी देयर शुड बी अ नाइस मॉरल, समथिंग लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यू शुड ऑलवेज बी वेरी करेजियस, लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, मुश्किलें आती है लेकिन उसको फेस करना ज़रूरी होता है, जो लोग हमेशा सच बोलते हैं वो हमेशा जीतते हैं हमेशा। दीज आर कॉल्ड वैल्यू सिस्टम्स एंड योर द एथिक्स एंड द मॉरल्स एंड द वैल्यूज़, इसको हम बचपन में अगर बच्चे में इंस्टॉल कर दे तो कोई चैलेंज ही नहीं है, एवरीथिंग इन लाइफ विल ऑलवेज बी सेट। अब मैं जब बड़ा हुआ तो आई ट्रैवल्ड ऑल अराउंड इन अमेरिका, आई वेंट टू हॉस्टल्स, मैं IIT में पढ़ने गया था, वाराणसी में हॉस्टल में 4 साल रहा, लेकिन मेरे अंदर कभी कोई गलत हैबिट ही नहीं आई। तो मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा था कि ये कैसे हुआ। तो जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि मैं जब छोटा था तो मेरे ग्रैंडफादर हमेशा मुझे रात को कहते थे कि सुनील बेटा चल आके मेरे पैर दबा, लेकिन पैर दबाने के साथ में एक मोटिवेशन था, वो हमको रोज़ एक बढ़िया कहानी सुनाते थे। ये एवरी डे यूज्ड टू रीड अ स्टोरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर and he used to tell us a story. Now all these stories were amazing stories, and so that was a very big motivation for me and my brothers. Every day we used to press his legs, और साथ साथ में हम कहानी सुनते थे, और कहानी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें वो सुनाते थे, उसके साथ में मॉरल्स सुनाते थे। एंड बिकॉज ऑफ दो स्टोरीज आई फील कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो गई कि ना हमें कभी कोई इच्छा, कोई ड्रिंक्स या अल्कोहल या स्मोकिंग या कोई भी चीज़ करने की कभी इच्छा नहीं हुई, बिकॉज ऑफ करेक्ट प्रोग्रामिंग इन द चाइल्डहुड। सो करेक्ट प्रोग्रामिंग ऑफ द चाइल्ड, वन मेथड इज़ टू रीड देम बेड टाइम स्टोरीज, दैट इज़ द बेस्ट वे। जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हो ना सोते समय, खास करके वो लेटा हुआ है या लेटी हुई है, आप उसको तब कहानी सुनाओ, वो नींद में होते हैं, और नींद के समय आप बच्चों को जो भी बोलोगे वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, और वो प्रोग्रामिंग जिंदगी भर कभी भी नहीं जाएगी। ओके अब बहुत छोटा सा इन्फेंट है, तो आप छोटे से इन्फेंट को भी प्रोग्राम करते हो। बच्चा जब सो जाता है, जस्ट सो जाता है, तो उसके कान में यू मर्मर द वर्ड्स, यू आर अ वेरी पावरफुल चाइल्ड, मॉम लव्स यू, you will grow up to be something amazing, you're going to be a wonderful human being, your mathematics is very good, you are very good in studies, your memory is excellent। आप इस तरह के पॉजिटिव कमांड्स जैसे ही बच्चा सो जाता है उसके कान में आप बोल सकते हो। दिस यू कैन डू इट फॉर चिल्ड्रन अप टू 6-7 years, मतलब जब तक बच्चे उठ नहीं जाते, 6-7 साल के बच्चे तक तो वो आराम से सुन लेते, इवन 8 साल के बच्चे भी सुन लेंगे। तो उनके कान में धीरे से, खास करके मॉम्स और बच्चों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तो इफ मॉम्स मर्मर द वर्ड्स इन द चाइल्ड्स ईयर्स, उसकी प्रोग्रामिंग ज़बरदस्त हो जाती है। अब ये प्रोग्रामिंग बच्चा जब मम्मी के पेट में होता है तभी भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं गर्भ टाइम। द मम्मी ऑल्सो नीड्स टू टॉक टू द बेबी, द डैड ऑल्सो नीड्स टू टॉक टू द बेबी। इसलिए गर्भ संस्कार में क्या कहते हैं कि डैडी को मम्मी के जो पेट है उसके पास में जाकर के बच्चे से बातें करनी चाहिए, तो वहीं से एक अच्छा रिलेशनशिप बच्चे के साथ में हो जाता है, और वहीं से बच्चे की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। हमको लगता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता, एक छोटे से इन्फेंट को शब्द कैसे समझ में आएंगे, बच्चों को शब्द समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चों को फीलिंग समझ में आते हैं। सो वट एवर यू आर स्पीकिंग, इफ़ यू आर स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट विद अ लॉट ऑफ लव, द चाइल्ड कैन एक्सपीरियंस लव, and those feelings of love are stored in the subconscious mind even when the child is in the mother's womb। ओके तो छोटे बच्चों की प्रोग्रामिंग आप कहानियों के द्वारा कर सकते हो, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, बायोग्राफीज, उनके साथ में अच्छे अच्छे यूट्यूब के वीडियोस देखो। दिस इज इवन ट्रू फॉर चिल्ड्रन अप टू 10, 11, 12, 14। जब तक वो आपके साथ में बैठ के सुनते हैं तब तक ये सारे फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं। टीनेजर्स के साथ में यू हैव टू बिकम अ फ्रेंड। See the beautiful rule with parents, with children, 0 to 7 years, the formula, 0 to 7 years is pure, simple, unconditional love to children। प्यार के सिवा कुछ नहीं। Don't expect much के मार्क्स लाया, मार्क्स नहीं लाया, पढ़ाई किया, पढ़ाई नहीं किया,
That is the time when children need the maximum love and attention. Love and attention. These are the two things that children need. 7 to 14 is the age of disciplining. वहाँ पे हमें उसके माइंड को डिसिप्लिनिंग करना है. तो प्यार से रूल्स को सेट करना है. इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है. वो भी सारी चीज़ें प्यार से बतानी है. ओके, प्यार से बतानी है. कभी कभी थप्पड़ मारना पड़ा. बट दैट इज ऑल्सो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एंगर. ओके, तो 7 to 14 इज द टाइम फॉर डिसिप्लिनिंग. एंड 14 के बाद यू बिकम अ फ्रेंड टू योर चाइल्ड, बिकॉज उसके बाद नो अदर थिंग वर्क्स. It is purely having a friendship relationship with your child where you are able to openly and honestly communicate with your children so that you can find out what's going on in their lives. Okay, you have to become a friend after 14. So, like I said, another way is to spend time in the family. So, kids who are grown-ups, so having a evening time, family time, sitting together on the dining table, discussing what's going on in life, that is creating bonds and creating relationships. All of this is helping the child in programming the mind. खास करके बचपन में तो this is very very important. Okay, now what else can we do? So these are some tips that I have for parents. I will give more tips as we move forward. We're almost getting to 10:15, so I'm just going to share with you a few things that we have decided to do during the day. तो अगर आप लिख रहे हो तो अपना एक शेड्यूल लिख लो कि सुबह से लेकर रात तक क्या करना है, ताकि आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहे और आप अपने जीवन में जो आप चाहो आप उसको हासिल कर सकते हो. तो स्टार्ट योर डे विथ, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, स्टार्ट योर डे विथ फर्स्ट, इफ़ यू लव टू एक्सरसाइज एंड इफ़ यू इवन डोंट लव टू एक्सरसाइज, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. ओके, तो अपने दिन को शुरू करो एक 30 मिनट्स एक्सरसाइज के साथ में. Now exercise can be of any kind. You can do yoga, you can do pranayam, you can do running, you can do jogging, you can do cycling, whatever you like. एक आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, रिगरस एक्सरसाइज करना है, जिससे कि आपका हार्ट बीट होना चाहिए. देयर इज सर्कुलेशन हैपनिंग इन द बॉडी. नाउ दिस शुड हैपन इमीडिएटली आफ्टर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, राइट? सो लाइक यू गेट अप, फ्रेशन अप, डू सम अपना सारा चाय पानी जो भी आपको पीना है पी करके आधा घंटा एक्सरसाइज करने निकल जाओ. घर में करो, बाहर करो, कैसे भी करो. उसके बाद आप जब घर पे आते हो तो शांत हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, एक अच्छी सी जगह घर में ढूंढिए और वहाँ पे अपने ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करो. नाउ दैट प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड विल बी फॉर हाउ मेनी मिनट्स? 7 to 10 minutes, right? You're going to do the gratitude practice for 7 to 10 minutes. Okay. After that, after you finish your gratitude, read something which is inspirational. कोई भी अच्छी बुक्स पढ़ो, कोई भी अच्छे वीडियोस को सुनो, कोई भी अच्छे ऑडियो बुक्स को सुनो. एनीथिंग विच इज़ न्यू लर्निंग्स, समथिंग विच इज़ पॉजिटिव. तो आजकल तो कितने अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, यूट्यूब के ऊपर आते हैं. देयर इज़ लॉट्स ऑफ गुड स्टफ ऑन टीवी एज वेल. मेक श्योर यू सिलेक्ट पॉजिटिव इंस्पायरिंग कॉन्टेंट. ओके, तो स्पेंड अबाउट हाफ एन आवर ऑन रीडिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो हाफ एन आवर एक्सरसाइज, हाफ एन आवर अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, पॉजिटिव चीज़ों, अपने रिफ्लेक्शन का काम किया. थोड़ा अपने दिन के बारे में सोचो, मुझे क्या क्या करना है, अपने दिन को कैसे निकालना है, टू डू लिस्ट बनाया, सब कुछ किया. दैट इज़ नोन एज थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइम. ओके, थर्ड थिंग यू गोना डू इज रीड समथिंग इंस्पिरेशनल. या सो रीड अ बुक, लिसन टू एन ऑडियो बुक, वॉच यूट्यूब वीडियोज़. तो ये मॉर्निंग का जो करीब 1 से 1.5 घंटा है वो आपको अपने खुद के लिए देना है. तो 1.5 घंटा आप अपने लिए दोगे, मिनिमम 1 घंटा. जो लोग अपने आप को 1 घंटा सुबह देते हैं, दे आर द पीपल हु आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑन द प्लैनेट. ओके, एंड दैट मॉर्निंग आवर शुड बिगिन आइडियली एट 5 AM. इसीलिए वो एक बहुत ही खूबसूरत बुक है जो रॉबिन शर्मा जी ने लिखी है. इट इज़ नोन एज द 5 AM क्लब. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस बुक? हाउ मेनी ऑफ यू रेड द 5 AM क्लब? Anybody has read this book, 5 AM Club by Robin Sharma? Omkareshwar is saying, when can we expect a book from you? Yes, right now the book is scheduled for release on October 11th.
Oh, Rajni says, I have read this book. Anybody else has read the 5 a.m. Club? Nishad is saying, I've started reading. Okay, I want to strongly recommend this book to all of you. Okay, it's a fantastic book which is written for high performers. Okay, Sangeeta Tilwani ji is saying, yes, I've read it. So Robin Sharma is somebody whose expertise is in peak performance, high performance coaching, all of that, and he's written this amazing book 5 a.m. Club. When I read it, इतना इंस्पिरेशनल बुक है कि 5 बजे आप अपने बेड में से बाहर निकल जाओगे, इतना पावरफुल बुक है. And he also tells you exactly what to do during the day. So I would strongly recommend this book to all of you while you are at home right now. तो उस बुक को आप किंडल पे बाय कर सकते हो. ऑनलाइन तो शायद डिलीवरी आपको मिलेगा नहीं हार्ड कॉपी का, बट एटलीस्ट यू कैन बाय इट ऑन किंडल एंड यू कैन रीड दिस बुक. इट्स अमेजिंग. ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा, मॉर्निंग रूटीन विल बी एक्सरसाइज, देन डूइंग योर ग्रैटिट्यूड एंड ऑल योर थिंकिंग, एंड देन यू डू सम रीडिंग वर्क, एंड देन अपने काम पे लग जाओ. काम पे लगने के बाद दिन में अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी आती है तो आप टैपिंग करोगे. ओके, अगर आपको एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करोगे? इवन दो आई एम फीलिंग एंग्री, आई डीपली एंड कंप्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे? इवन दो आई हैव दिस टेंशन, बहुत टेंशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार और स्वीकार करता हूं. बहुत टेंशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, जो भी हो रहा है वही. अगर आपको ये टैपिंग कैसे करना है, रेफ़र करना है, तो आप डे 2 के वीडियो को वापस रेफ़र करिए. उसमें पूरा मैंने समझाया कि टैपिंग कैसे करना है. तो दिन के समय अगर जरा सा भी नेगेटिविटी आती है, निशाद इज सेइंग नो टैपिंग इन द मॉर्निंग. येस, यू कैन डू प्रिवेंटिव टैपिंग इन द मॉर्निंग. प्रिवेंटिव टैपिंग मतलब कुछ भी बोले बिना एक 5 से 10 मिनट आप मॉर्निंग में टैपिंग कर सकते हो, ताकि आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी अगर मॉर्निंग में है तो निकल सकती है. ओके, Nishad, I am just telling them basic steps. People who have attended my workshop, there is a much more detailed routine. So don't change your routines. Right now, the people who are there in the audience, some of them are very new people. So I am just telling them basic steps to follow. Okay, so don't get confused. So दिन के समय जब भी आपको नेगेटिविटी होती है तो थोड़ा सा टैपिंग करके वो नेगेटिविटी को निकाल दो. और एक दूसरा मैं आपको प्रेयर देने वाला हूँ. उस प्रेयर का नाम है प्रेयर ऑफ माइंड. Okay, prayer of mind. ये prayer of mind is a very very powerful prayer which programs your mind for positivity. तो मैं Facebook के ऊपर उसको लोड कर दूंगा. I am going to put it on Facebook. इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा and you copy it on your cell phone and then you can listen to it once in a day. So it takes about 20 minutes. तो आप उस प्रेयर को सुनेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारा पॉजिटिव प्रोग्रामिंग. किसी ने मुझे पूछा कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे चेंज करनी है, तो प्रेयर ऑफ माइंड इज़ वन ऑफ द वेज टू चेंज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. ओके, सो आई विल सेंड यू द, आई विल पुट द प्रेयर ऑन फेसबुक एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द प्रेयर? इफ यू आर इंटरेस्टेड से yes, yes, yes. So that is going to motivate me to put the prayer for you all. Okay, looks like the internet is very slow today. Ashwini ji says yes. Hemant Pachori ji says yes. Okay, Sangeeta ji says yes. Sandeep ji says yes. Thank you so much. So yes, definitely put it up on Facebook. उसको आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने फ़ोन पे कॉपी कर लीजिए. एंड दिस ऑडियो प्लीज़ शेयर इट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज दिस इज़ एन ऑडियो विच हैज़ बीन डिज़ाइन टू क्लीन अप द सबकॉन्शियस माइंड. ओके, उसको पॉजिटिव करने के लिए है वो, राइट. तो प्रेयर ऑफ माइंड में आपको फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा सो दैट यू कैन डाउनलोड इट. ओके, फिर रात को सोने से पहले हम मेडिटेशन करके सोएंगे. रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशंस. जो हम मेडिटेशन अभी करने वाले हैं उस मेडिटेशन को भी मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा. उस मेडिटेशन को भी डाउनलोड करिए. अभी कुछ दिनों के लिए इस मेडिटेशन को आपको करके सोना है. रात को 10 बजे करके सोना है. अभी देखो 10 बज के 20 मिनट हुआ है.
So we'll do the meditation right now, and then after doing the meditation, calm yourself down and completely go to sleep. Meditation will anyways going to calm you down. तो उस काम माइंड में आप आराम से सो जाइए, तो आपको रात भर वो पॉजिटिविटी माइंड में रहेगी, एंड यू विल फील नाइस, एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू विल फील फ्रेश. दैट इज़ वाई ऑल ऑफ यू आर फीलिंग फ्रेश, बिकॉज हम 3 दिनों से रात को मेडिटेशन करके सो रहे हैं. तो माइंड जब फ्रेश होता है और हम सोते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू फील रियली एनर्जेटिक, एंड यू नो द डे गोज वेरी वेल, राइट. सो वंडरफुल. लेट्स डू अ लिटिल रिकैप. आज हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और सीखा. हमने सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड एक हार्ड डिस्क होती है. उसके अंदर बचपन से लेके जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके बेसिस पे हमारी मान्यताएं बनती है. मान्यताओं के बेसिस पे हमारे विचार होते हैं, विचार के बेसिस पे हम एक्शंस लेते हैं, और एक्शन के बेसिस पे हमें रिजल्ट मिलते हैं. इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है. तो ये पहली चीज़ हमने सीखी. थोड़ी टिप सीखी कि बच्चों को हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं. ओके, सो वी लर्न सम टिप्स ऑन हाउ टू program the children of minds of little children, and then we also understood our daily routines कि डेली सुबह से उठ करके रात तक हमें क्या करना है. ओके, इतने सारे हम प्रोसेसेस करेंगे तो हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा. कुछ भी परिस्थिति बाहर क्रिएट हो जाए फिर भी हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड फॉर यू, टुडे और टुमारो मॉर्निंग आई विल अपलोड फॉर यू द प्रेयर ऑफ माइंड एंड द मेडिटेशन. 2 चीज़ें मैं आपको अपलोड करूंगा, उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा. ओके, so let's do a little meditation and then we will end the session for today. Okay, everybody sit in the relaxation position. If you are sitting on a chair, make sure your legs and hands are not crossed. हाथ को ऐसे क्रॉस नहीं रखना है, उसको अपने लैप्स के ऊपर ऐसे रखना है, या फिर ऐसे हम एक मुद्रा के पोजीशन में ऐसे अपवर्ड फेसिंग रख के अपने लैप के ऊपर उसको रख सकते हैं. स्पाइन को जितना हो सके स्ट्रेट रखिए और अपने चेयर के ऊपर अच्छे से सपोर्ट देके बैठिए. एंड नाउ यू मे जेंटली क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट टेकिंग डीप लॉन्ग ब्रेथ्स. लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करिए. And as you start taking deep, long breaths, you allow yourself to go deeper and deeper and deeper into relaxation. With every inhale, you take in love, joy, peace and serenity. जैसे आप सांस अंदर लेते हो तो ब्रह्मांड की सारी अच्छाइयाँ आप अंदर लेते हो, और जैसे ही आप सांस बाहर निकालते हो तो आपके अंदर कोई भी तनाव, कोई भी चिंताएं, कोई भी स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें निकल के जा रही है. महसूस करिए कि all the negativity inside, all the stress, tension, worries are leaving you at the time of exhalation. Just keep all your attention focused on your breathing. Remember, the best way to pay attention to your breathing is to stay focused on your nostril. अपने नाक के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आप महसूस कर सको कि हवा अंदर जा रही है और हवा बाहर आ रही है. Just stay focused on your breathing. Now take a deep long breath. एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए. Just relax all your body parts. Relax your hands, your legs, your abdomen area, chest area. Relax your shoulders, your neck muscles, and also relax all the muscles of your face. अब
अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। Just keep all your attention focused on your breathing. अब महसूस करिए कि एक ब्यूटिफुल रिलैक्सेशन का वेव, इट इज कमिंग, अ ब्यूटिफुल वाइट शाइनिंग लाइट इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, कमिंग फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ योर हेड। और ये सफ़ेद रंग की लाइट आपके शरीर के अंदर एंटर हो रही है। वो एक रिलैक्सेशन का वेव है जो आपके सिर के ऊपरले हिस्से की ओर से अपने बॉडी में एंटर हो रहा है, कवरिंग योर फॉरहेड, कवरिंग योर आईज, योर टेम्पल्स, आपके नोज को कवर कर रहा है, आईज को कवर कर रहा है। महसूस करिए कि इट इज ब्रिंगिंग इन अ ब्यूटिफुल कूलिंग सेंसेशन पासिंग थ्रू एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी, पासिंग थ्रू योर लिप्स, covering your lips, your chin area, your neck area, covering the shoulder area, covering the chest area, your hands, your abdomen area. Visualize that this relaxation wave is passing through every single cell of the organs, the bones, the muscles, and also covering your entire legs. महसूस करिए कि रिलैक्सेशन का वेव इज पासिंग थ्रू एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी। सेल को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। योर एंटायर बॉडी, राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर, फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड all the way to the bottom of your feet is now completely relaxed. All the bones, all the muscles, all the tissues, all the cells, all the molecules, and every single atom of your body is now completely relaxed. Relax, relax, relax. And now that your body is relaxed, we will now relax the mind. आपके माइंड को रिलैक्स करेंगे। माइंड को रिलैक्स करने के लिए आई एम गोइंग टू काउंट डाउन फ्रॉम 20 to 1, and as I count down from 20 to 1, with each count you will go deeper and deeper and deeper into your subconscious mind. When I count down from 20 to 1, आप ऐसा महसूस करिए कि आप एक सीढ़ी के स्टेप्स नीचे उतर रहे हो, यू गोइंग डाउन अ स्टेयरकेस, and with every step you're going deeper and deeper and deeper into your subconscious mind. So चलिए शुरुआत करते हैं। 20, 19, 18, going deeper and deeper, 17. With every step you're going 1,000 times deeper into your subconscious mind. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now you've reached the bottom of the staircase, standing deep down in your subconscious mind. आप अपने अर्ध जागृत मन की सबसे गहरी अवस्था में हो। Now you may transport yourself to one of the most beautiful places on planet Earth. अपने आप को एक बहुत ही सुंदर जगह में अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लीजिए, और जैसे आप इस सुंदर जगह में पहुंच जाते हो तो आपका मन और भी शांत हो जाता है। This beautiful place is a place that you truly love. It could be a hill station, a garden, a beach, a forest, or any place that you truly love. And as you find yourself in this beautiful place, your mind becomes more and more
पीसफुल। उस जगह को पूरी तरह से महसूस करिए। फील द प्लेस। यू कैन फील द वार्मथ ऑफ द सनलाइट। हल्की हल्की धूप को महसूस करिए। ठंडी हवा को अपने चेहरे पे महसूस करिए। आकाश में जो पक्षी है उसकी आवाज़ को सुनिए। हियर द बर्ड्स चर्पिंग इन द स्काई। इसी तरह लॉट ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स अराउंड यू, उसकी खुशबू को महसूस करिए और अपने आप को पूरी तरह से उस जगह में पूरी तरह से महसूस करिए। फील द प्लेस एंड एज यू सेंस द एंटायर प्लेस एंड फील द प्लेस, योर माइंड बिकम्स मोर एंड मोर रिलैक्स्ड। इस समय आपका शरीर और आपका मन दोनों ही पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। बोथ योर बॉडी एंड योर माइंड आर नाउ कंप्लीटली रिलैक्स्ड। You are now in the alpha state of mind. The alpha state of mind, इस अवस्था में आप अपने अर्ध जागृत मन, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हो and you have access to the infinite intelligence that exists within you. ये infinite intelligence is none other but the creator of this universe. तो आप डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाते हो। तो आप विजुलाइज करिए कि आप उस सुंदर जगह में आपके परमात्मा है। यू कैन सी हिम। whoever your God is, you're able to see him there, right there in front of you. तो सबसे you're going to seek forgiveness because हमारे लाइफ में, हमारे प्लैनेट में जो कुछ भी हो रहा है, it is a result of our past actions, our past karmas. There is nothing that ever happens without a cause. So we're going to seek forgiveness from God, that dear God, if I have hurt anybody or if I have hurt Mother Nature, knowingly, unknowingly, directly, indirectly, in this life or if in any of my past lives, if I have hurt anybody through my thoughts, words and deeds, मेरे शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा और मेरे एक्शंस के द्वारा अगर किसी को भी मैंने हर्ट किया है, इंक्लूडिंग मदर नेचर, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। Even I don't remember what I have done. I could have done something wrong in this life, in my past life, but you know everything because you are infinitely intelligent. There is infinite intelligence within you, wisdom. God आपको सब पता है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। And now visualize that there is a beautiful white shining light coming directly from God, and it is covering you completely. It's a beautiful white divine light, white shining light, divine light, which is covering you completely. And visualize that it is washing away all the old karmas which are creating any sort of problem in your life today. And also visualize that it is covering all your family members and the entire planet. And visualize that it is doing cleaning of all the past karmas for all the 7 billion people, and all the karmas that are being washed away are going into the black hole of the universe. और अब विजुलाइज करिए कि द ब्यूटिफुल वाइट शाइनिंग लाइट इज कवरिंग अवर एंटायर ग्लोब like a beautiful white protective covering around the globe. It is the shield which is protecting our globe from anything from the outside world which is harmful. And because of God's grace, you're very thankful to God. Thank you, thank you, thank you so much, God, for your grace. And now we'll take a few moments to express our deepest gratitude to God for whatever is there in our life today. हमारी ज़िंदगी में आज जो भी है उसके लिए हम थैंक यू कहेंगे। थैंक यू डियर गॉड फॉर दिस डे। आज का दिन तुझे तूने मुझे दिया। थैंक यू फॉर ऑल द पीपल अराउंड मी, माई फैमिली मेम्बर्स, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, माई गुरुज हु मेड मी हु आई एम, और जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको थैंक यू. Thank you for my body, which is fit and fine, my mind, which is infinitely intelligent, creative, intuitive. तो मेरे माइंड को थैंक यू, बॉडी को थैंक यू. थैंक यू दैट आई हैव अ वंडरफुल हाउस विच आई एम लिविंग इन. तो घर को थैंक यू. थैंक यू फॉर माई ऑफिस, माई vehicle, whatever the vehicle I am living in, and for all the abundance in my life, all the money, all the prosperity. I'm feeling so blessed because there are so many people on this planet who are right now facing challenges, but I am so blessed that I am safe, I am protected, I'm with my family is safe. Thank you for all your blessings, dear God. Thank you, thank you, thank you. Your God is right there in front of you and you're expressing your deepest gratitude. कह रहे क्योंकि हर चीज़ जो हमारे लाइफ में है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है. Everything, in fact, the smallest of the things which are there, we should be grateful for. Because जिस दिन वो चीज़ हमारे लाइफ में नहीं होती उसी दिन हमें उस चीज़ का वैल्यू पता चलता है. तो अगर वॉशरूम में जाते हो, नल में पानी आता है, तो प्लीज़ बी थैंकफुल फॉर द वाटर दैट इज़ कमिंग इन योर टैप्स. Please be grateful for all the food that we eat every day, the air, the water, the food, the clothes we wear. Everything is a blessing. We're genuinely grateful to God for all these. There's an utter sense of gratitude towards God. Thank you, thank you, thank you. Now we're going to use the third method of installing seeds in our subconscious mind. We're going to use affirmations. Before affirmations, in fact, we'll do some appreciation. So we're going to take a moment to appreciate. हम उन सारे लोगों को appreciate करेंगे जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं. All the doctors which are working round the clock, nurses, paramedical staff, all the people who are cleaning the hospitals, the people who are making sure of the essential supplies, दूध वाला, सब्जी वाला, न्यूज़पेपर वाले, जितने भी लोग हमें सर्व कर रहे हैं, सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. दैट वी आर वेरी अप्रिशिएटिंग, डीप अप्रिसिएशन टुवर्ड्स देम कि हम लोग घर पे बैठे हैं लेकिन वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं. टू पीपल ऑन द बॉर्डर्स, आवर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एंड ऑल द पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू us living a happy, safe life in our homes. Wonderful. We'll now going to say a few affirmations. तो मैं affirmation बोलूँगा, उसको आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे feelings के साथ में अपने मन में बोलेंगे या जोर से बोलेंगे. I am safe and divinely protected. My family is always safe and divinely protected. और महसूस करिए कि आपके फैमिली के आसपास एक बहुत ही ब्यूटीफुल शील्ड है, वाइट कलर का शील्ड तरह से प्रोटेक्ट करता है. द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑलवेज सेफ एंड प्रोटेक्टेड. मदर नेचर एंड आवर प्लैनेट इज ऑलवेज सेफ एंड प्रोटेक्टेड. Please visualize a beautiful white shining light around the globe which is protecting our earth, Mother Earth. I know we are currently in a difficult situation, but I also know and I have complete faith that this too will pass. कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, तो ये जो परिस्थिति है वो भी परमानेंट नहीं है. इसके बाद अच्छे दिन डेफिनेटली आने वाले हैं. डिफ़िकल्ट टाइम्स आर ऑलवेज फॉलोड विद गुड टाइम्स. सो आई नो इट इज़ कमिंग. द गुड डेज आर कमिंग. आई कैन एक्चुअली सी इट कमिंग. आई एम ऑलवेज सेफ, financially protected, and my finances are always safe and divinely protected. विजुलाइज करिए कि आपके फाइनेंसेस भी हमेशा ठीक है,
and everything is coming back to normal. I am powerful, I am confident, my mind is always positive. I know I can contribute to this world and I am doing my best. Wonderful. Now we'll do a little visualization. मन में हम मनोचित्रण करेंगे. तो आप विजुलाइज कर रहे हो कि आप सो रहे हो और आपके डोरबेल बज रही है, घंटी बज रही है और आप उठ करके दरवाज़ा खोलते हो, न्यूज़पेपर वाला आपको न्यूज़पेपर दे रहा है, दिनों के बाद डिलीवरी दे रहा है. जैसे आप न्यूज़पेपर को देखते हो तो आप देखते हो वहाँ पे एक बड़ा हेडलाइंस है, द वर्ल्ड इज़ नाउ कम्प्लीटली सेफ, कोरोना वायरस इज़ कम्प्लीटली गॉन एंड वी आर कम्प्लीटली सेफ. और ये हेडलाइन देख के आप खुशी से पागल हो जाते हो, खुशी से नाचने लगते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स को बताते हो, आपके फैमिली में भी सब लोग खुश है और आप गॉड को याद करते हो कि थैंक यू गॉड दैट फाइनली वी आर आउट ऑफ दिस. और जो हमने सोचा था उसके कहीं ज़्यादा पहले हम उसमें से बाहर आ चुके हैं. एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि आवर अर्थ हैज़ नाउ कम बैक टू नॉर्मल. विजुलाइज करिए कि आपके फैमिली मेम्बर्स सब सेफ है. आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देखते हो कि भले सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स हमेशा सेफ रहे हैं, दे ऑल फिट एंड हेल्दी. यू आर ऑल्सो सीइंग कि आपके आसपास पूरे बिल्डिंग में, सोसाइटी में सब जगह घंटियाँ बज रही है, सब जगह बेल्स बज रहे हैं, विसल्स बज रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी इज़ हैप्पी दैट वी आर नाउ बैक टू नॉर्मल. रोड्स पे फिर से एक्टिविटी देख रहे हो, इट्स बजिंग विथ एक्टिविटी. आप भी रेडी हो ऑफिस जाने के लिए, बच्चे भी स्कूल में जा रहे हैं. एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल. देयर इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग ऑफ पीस एंड सेरेनिटी विद इन. अब बहुत खुश हो कि वर्ल्ड हैज़ कम बैक टू नॉर्मल. एंड मोर देन ऑल ऑफ दैट, द वर्ल्ड हैज़ नाउ इमर्ज टू बी अ मच मोर ब्यूटिफुल प्लेस बिकॉज ऑफ ऑल द चैलेंजेस दैट हम सब ने साथ में मिल के सहा है. उससे लोगों में प्यार बढ़ा, एक दूसरे को हेल्प करने की भावना बढ़ी, करुणा भाव, कंपैशन बढ़ा. तो यू आर सो हैप्पी दैट द वर्ल्ड इज़ नाउ अ मच मोर ब्यूटिफुल प्लेस. यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू हियर द बर्ड्स चर्पिंग इन द स्काई. जो चीज़ें हमें शटडाउन के दौरान सुनाई देती थी वो आज भी सुनाई दे रही है. भले ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन नाउ द एयर इज़ मच मोर क्लीनर, देयर इज लेसर पोल्यूशन, द बर्ड्स आर स्टिल चर्पिंग इन द स्काई. नेचर इज, यू कैन फील द ब्यूटिफुल नेचर अराउंड यू and you can feel a sense of warmth, compassion, love in all the human beings that you see around you. So you're thankful and grateful to God that the world has now emerged to be a much more beautiful place. You have a feeling that Satyug is coming back. The time for Kalyug is gone and Satyug is now actually happening. सो आप ऊपर देखते हो आकाश की ओर, यू लुक अप इन द स्काई एंड आप जोर से थैंक यू कहते हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दैट द वर्ल्ड इज नाउ कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट एंड इट इज़ अ मच मोर ब्यूटिफुल वर्ल्ड फुल ऑफ लव, जॉय, कंपैशन, पीस, प्योरिटी एंड ब्लिस. You can feel the feelings within you that this has indeed become true. Wonderful. अब मैं 1 से 10 की गिनती करूँगा. And as I count up from 1 to 10, at the count of 10, when you open your eyes, you will be completely calm, completely peaceful, feeling much better than before, and ready to have a beautiful night's sleep. 1, 2, 3, come out slowly, 4, 5, 6, 7, 8, coming out slowly, 9,
Please rub your hands together. अपने hands को rub करिए. Put them on your eyes. Feel the warmth of your palms on your eyes. And 10. Slowly remove your hands off your eyes. और धीरे से अब अपनी आंखें खोलिए. और जैसे आप अपनी आंखें खोलते हो तो आप पूरी तरह से फीलिंग काम, completely peaceful, feeling much better than before and ready to take a beautiful night's sleep. So thank you everybody once again for joining me this evening. I hope day 4 was beautiful. Whatever you feel like sharing, you can share in the comments. How did you feel the session was today? कैसा लगा आपको? Wonderful. I'm not able to see any comments, possibly because the internet connection is a little slow. So Deepak Yelwande ji says it's wonderful. Thank you Deepak ji for being here today. Dev Chandan says wonderful, tapping and amazing as always, inspiring. Geeta Chuk says awesome. Sushmito says thank you sir. Pranjali says amazing. Deepak ji says, Sanjeev Kumar says, Rajni says ever grateful. Ashwini says it was awesome. Ritu Patel says superb. Hi Ritu. Sudhir Jha says very nice. Nishad says thank you. Kamlesh ji says double maza. Suresh Shri says wonderful. Chandresh ji says wonderful session. Ritu Pagaria says wonderful. Jai Shri Tibbe says wonderful and very peaceful. Awesome. I am so happy that the sessions are serving the purpose. कि हम कितनी भी मुश्किलों से पार हो रहे हैं, लेकिन अपने मन को अगर हम संभाल ले तो अच्छे दिन दूर नहीं है. Right? Like Modi ji says, अच्छे दिन आने वाले हैं. I am sure it is coming. And all we need to do is take care of our minds during this time period so that we can use our time effectively. अगर हम इसको संभालेंगे तो हम अपने समय को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं. Please read good books, do the practices which I told you, and we'll definitely get through this in the fastest possible manner. Okay? Thank you so much. God bless you all and wish you all the best and have a good night. Okay, we'll see you tomorrow at 9:30. And if there are any specific things that you would like me to cover, you can please leave your comments on Facebook. अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, कोई भी चीज़ को सॉल्व करना है, या अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ कवर करूं, तो आप अपने सजेशंस दे सकते हो, सो दैट आई कैन स्ट्रक्चर द सेशन अकॉर्डिंगली. दीपेश जी सेज थैंक यू फॉर योर काइंड वर्क. Padmaja says good night. Thank you. Good night, Padmaja. Beena, thank you so much. So please do leave your comments along with your suggestions and recommend, whatever you want. And please do share these sessions with maximum number of people, okay? I see today we had a count of almost 150 people. That means all of you are definitely sharing with your friends. So I'm truly grateful to each one of you for sharing. Good night. Good night, Pandurang ji. Thank you. Sachin ji saying thank you. Good night. Wonderful. Take care. Sushmito ji, take care. Good night. Okay, I'm going to end the session. I'm going to let all of you go and take a beautiful night's sleep. Okay, see you tomorrow at 9:30 sharp. God bless you all. Wish you all the best. Thank you so much.